और ये 54वीं एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और इस चैंपियनशिप का आज जो मुकाबले हैं, जहां 71 किलोग्राम वर्ग के आज मुकाबले होंगे। सबसे पहले जिसमें भारत की ओर से अजीत नारायण और माधवन गेस्ट के तौर पर उतरेंगे। आप आज का देख सकते हैं कार्यक्रम, जहां 71 किलोग्राम से शुरुआत होगी। और आज की अगर पहली प्रतियोगिता की बात करें, क्योंकि यहाँ अजीत नारायण जो हैं 71 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती रखेंगे और माधवन गेस्ट के तौर पर उतरेंगे। और नेशनल चैंपियन हैं अजीत नारायण, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और माधवन जो हैं जो गेस्ट के तौर पर उतरेंगे। And here's the start list. From Sri Lanka we have Indika Chaturanga. Then from Kuwait we've got Isa Shaher, Rashido Bunyar from Turkmenistan, Sheng Wang Heng from Chinese Taipei. From Oman is Albusaidi Elias. From Uzbekistan we got Matra Sulov, Kushin Boy, India's very own Narayana Ajit, and the guest competitor here, Tirumurugan Madhavan. Field here from North Korea, Juri Won, and from China, Shen Jian. It's a packed start list here at the men's 71 kg category, and it promises to be a cracking day of weightlifting as we begin things off with the men's 71 kg here. और अभी तक 2 भारतीयों ने कांस्य पदक जीते हैं। और आज के पहले प्रतियोगी ऐसा शाहिर, कुवैत की। Essa is just 17 years of age, the youngest in this competition here. Essa Shahir from Kuwait will begin today's proceedings in the snatch. Dressed in all black here, and he's attempting 70 kilograms in his first attempt here in the snatch. And we begin things off with a good lift here. Isa Shahir gets a good lift off of 70 kilograms in the snatch. The 17-year-old from Kuwait has 3 green dots by his name. There you go. Easy as that, no wobbles there. A smooth lift there from the teenager from Kuwait. And he's got 70 kilograms to his name. And Isa is back. He's getting his back patted, puts that belt on, and he's back for his second attempt at 75 kilograms. Smooth is that once again for Isa there. No trouble whatsoever at 75 grams. He gets the 3 green dots, which signals that it's a good lift. And the Kuwaiti lifter looks in good touch here. There you go. Smooth is that, easy on the elevation there as well, and a good little lockout there. Made 70 look easy, made 75 look even easier. And here we have India's Ajit Narayana in action at 140 kilograms for his first attempt in the snatch. A bit of a pause there in the squat, but Ajit gets it done this time at 140 kilograms. He looked to be in a spot of bother initially in that deep squat there, but then those quads came through and the hamstrings pulled together. And he executes a good lift here. There comes the drive and the push. And those 3 green dots that every weightlifter loves to see. And Ajit's got 140 kgs to his name in the snatch here. और अब उज़्बेकिस्तान के आ रहे हैं कुशिन बॉय मातृसुलोव, जो कि उज़्बेकिस्तान के हैं, और ये दूसरे स्थान पर थे स्नैच में 2024 की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। और यहां 142 का लक्ष्य उनके सामने पहले प्रयास में। ये आप इनकी मांसपेशियों का खिंचाव देख सकते हैं, किस तरीके से उनका नपातुला ये प्रयास था। 142 किलोग्राम वजन उठाने में कामयाब अपने पहले प्रयास में। 148 तक मैं समझता हूं श्याम इनको पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेशक इनकी कोहनी थोड़ी पीछे गई थी, लेकिन बॉडी का जो बाकी हिस्सों का जो बैलेंस था वो बहुत ही काबिले तारीफ था। Bunyad Rashidov from Turkmenistan up next here. And now he's attempting 147 is Rashidov.
गौर करने वाली बात यह भी है कि 145 की बाधा को आप पार नहीं कर पाए थे दूसरे प्रयास में, लेकिन तीसरे प्रयास में आपने उसके बावजूद 2 किलो का लक्ष्य, वजन का लक्ष्य जो है और ज्यादा बढ़ा दिया है। क्या ये अति आत्मविश्वास के शिकार हैं? ये समय बताएगा। और समय पर हमने छोड़ा था और समय ने बता दिया है कि अति आत्मविश्वास के शिकार नहीं थे। ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और यहां पर सभी प्रतियोगियों में सबसे आगे तुर्कमेनिस्तान, जो अभी तक कोई भी पदक इनके नाम नहीं है, और यहां पर एक मजबूती के साथ उन्होंने प्रबल दावा रखा है। Ri Wonju is back here. Big boost for him a couple of minutes ago, having cleared that 151 kilogram barrier. But he has gone past this and will back himself here. $154 is what he's attempting in his final attempt in the snatch here. Wonju Ri from North Korea attempting 154. That might just be one of the best lifts of his career. He gets a good lift at 154 kilograms, and that puts him temporarily, at least, in pole position here in the men's 71 kg category. A superb lift from the North Korean there. A bit of a struggle, but he powers through. Big smile, a big roar there. And 154 kilograms is now all his. अब चीनी खिलाड़ी के पास एक सुनहरा मौका। अभी 2 लक्ष्य उनको तय करने हैं। पहला लक्ष्य तो है 154 की बाधा को पार करना, जो अभी उत्तर कोरिया के री वॉन जू ने उनके लिए रखी, और दूसरी बाधा विश्व रिकॉर्ड हो सकता है 155 किलोग्राम का लक्ष्य, जो अभी तक किसी ने भी निर्धारित नहीं किया है इस प्रतियोगिता में। बहरहाल उत्तर कोरियाई खिलाड़ी से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा अपना 155 किलोग्राम का, और इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाब रहे। स्नैच स्पर्धाओं में सबसे आगे रहे, नंबर 1 रहे चीनी खिलाड़ी, क्योंकि ये अभी दूसरा प्रयास था। दूसरे प्रयास में भी वो सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि उत्तर कोरियाई खिलाड़ी के सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, तीनों प्रयास खत्म हो चुके हैं। तो इस लिहाज से स्नैच स्पर्धा में सबसे अधिक वजन उठाने में कामयाब रहे यहां जियान चेन, 155 किलोग्राम के साथ अव्वल सबसे आगे। Now that is a lift, that's a statement from Jian Chen there. He could have gone to 154 to equal Ri Wonju, but he knew he had to get the lead. That goes up to 155 in his second attempt. और स्थिति यह है कि इसके बावजूद विश्व रिकॉर्ड बेशक इन्होंने नहीं बना पाए। चेन जियान सबसे आगे स्नैच स्पर्धा में, वहीं जूरी वॉन जो है उत्तर कोरिया के दूसरे स्थान पर, तुर्कमेनिस्तान के राशिदोव बुनियाद जिन्होंने 147 किलोग्राम वजन उठाया वो तीसरे स्थान पर हैं, और वहीं आप भारतीय खिलाड़ी को देख सकते हैं अजीत नारायण को 5वें स्थान पर वो रहे। उन्होंने कुल मिलाकर 140 किलोग्राम वजन उठाया, जो पहले प्रयास में वो उठाने में कामयाब रहे थे। I was just having a conversation with Sham behind the scenes. We were saying that we would have been really fortunate if there would have been a world record here in India as well, as we get going in the clean and jerk with Saher Isa. Saher looking to lift 90 kgs on this lift. Quite comfortable with that one. Gets us going in the clean and jerk with a 90 kg lift there. There you go. Looks like he has about 10 kgs to go on that lift. Quite comfortable. So it's going to now be Turkmenistan's Bunyad, 165 for Bunyad. $165 on that bar. Gets it quite easily. The leg strength is there. Is the arm strength there to back it up? Bunyad Rashidov stretches those arms.
That's a clean lift at 165. The challenge is out. The others have to respond. 165 up in the air by Rashidov. अपने अगले प्रयास के लिए उज्बेकिस्तान के तीसरा और अंतिम प्रयास। अब तीसरा और अंतिम प्रयास 171 किलो के लिए। देखना होगा क्या ये क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत कर पाएंगे। काफी संभावनाएं तो हैं कि ये इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम देंगे, मगर देखना होगा क्या चोट के रहते हुए उबर पाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी इस लिफ्ट को अंजाम तक लेकर गए हैं और बहुत ही संतुष्ट हैं अपने प्रयास से। ये देखिएगा बैक समरसोट भी लगा दी इन्होंने और दिखा दिया कि हाँ वह कितने अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। ये उत्सुकता और ये प्रयास दर्शाता है कि आप कितने अच्छे लिफ्टर हैं। फिलहाल भारतीय लिफ्टर 174 किलो भार उठाने का लक्ष्य उनके सामने। विपिन looking to clear this at 174 right now. Gets it up in the air, looks to hold it up. Can he do it? That's going to be the question. Yes, he can. The fist bumps are out. Gives out that scream. He knows he's done something special here, Ajit Narayanan on that attempt. Watch this here. Gets it up nice and smooth. Gets into position. Composes himself. Takes that extra moment, and there he goes with that lift. What a fantastic lift it is. And the fist bumps come out. What a lift it was. फिलहाल चाइना के लिफ्टर अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर। 180 किलो जो भार आपने पहले सुनिश्चित किया था, अगर आप उसको अटेम्प्ट को पूरा नहीं कर सकते तो आप वजन में वृद्धि तो कर सकते हैं मगर उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल 180 पर ही ये संतोष करना चाहते हैं कि यदि अगर 180 किलो की ये वैलिड लिफ्ट हो जाए तो ये प्रतियोगिता में बने रहेंगे। लंबी गहरी सांस, पहला चरण पूरा किया। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। अब 180 किलो की लिफ्ट करने के साथ ही क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। एक ऐसा प्रयास जो कि सभी को हमेशा याद रहेगा। उत्तर कोरिया के ये लिफ्टर री वॉन यू बहुत ही बेहतरीन लिफ्टर अभी तक साबित हुए हैं। 194 किलो का प्रयास पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं और एशियन रिकॉर्ड 361 है। तो दोनों ही रिकॉर्डों को ये ध्वस्त कर देंगे अगर ये लिफ्ट पूर्ण करते हैं, अंजाम पर लेकर जाते हैं तो। बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया। एशियन रिकॉर्ड और यूथ का जो था उसको भी ध्वस्त किया। एशियन रिकॉर्ड जो था 326 किलो उसको भी ध्वस्त किया और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 347 उसको भी ध्वस्त किया। यानी कि अब इनका कुल योग हुआ है 379। बहुत ही बेहतरीन, काबिले तारीफ। जितनी तारीफ की जाए इस लिफ्टर की वो कम है। 194 की लिफ्ट के साथ ही नए विश्व रिकॉर्ड की ओर अग्रसर हो चुके हैं। और अगला जो प्रयास है वो 197 197 किलो भार उठाने का ये चुनौती अपने लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपना ही विश्व रिकॉर्ड जो अब इन्होंने बनाया है अभी इससे पहले लिफ्ट में, उसको ध्वस्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। प्रयास अच्छा, पहला चरण पूरा किया। बहुत ही बढ़िया, नया विश्व रिकॉर्ड, अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर। क्या बात है, डीपीआर कोरिया के ये लिफ्टर जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर ध्वस्त किया है।
197 उठाकर इन्होंने ये प्रदर्शित कर दिया है कि इनके आगे अब कोई भी नहीं है। तो 382 किलो कुल योग हुआ है, जो कि विश्व रिकॉर्ड था 347, एशियन रिकॉर्ड था 326 और अब इनका रिकॉर्ड रहा है 382, यानी कि जो इन्होंने अपना पहले ही रिकॉर्ड बनाया था उसी को ध्वस्त करते हुए 382 किलो भार कुल उठाकर इन्होंने यहां पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साथ ही साथ स्वर्ण पदक भी अपने नाम कर लिया है। और ये देखिएगा मेडल टैली सबसे ऊपर है डीपीआर कोरिया के, जिन्होंने 351 किलो भार उठाया, और वहीं दूसरे नंबर पर रहे हैं चाइना 335 किलो। तीसरे नंबर पर भारतीय लिफ्टर रहे हैं, कांस्य पदक विजेता रहे हैं 314 किलो, और उसके साथ उज्बेकिस्तान के 313 किलो, और उसके साथ तुर्कमेनिस्तान के 312 किलो उन्होंने कुल योग उठाया। ओमान ने 277 किलो भार उठाया, कुवैत ने 165 किलो भार उठाया और भारतीय लिफ्टर ने 302 किलो भार उठाया है। तो ये है वो मेडल टैली, और पहले नंबर पर है यहां पर, और ये फिलहाल ताइपेन और श्रीलंका के खिलाड़ियों का योग, जो कि अभी इस प्रतियोगिता से The medalists in this match: bronze medalist representing Turkmenistan, Bunyat Rashidov. Silver medalist, Democratic People's Republic of Korea, Ri Won-ju. Gold medalists in the snatch: People's Republic of China, Chen Jian. Now, clean and jerk. Bronze medalist representing India, Ajit Raya Narayana. Silver medalist, People's Republic of China, Chen Jian. Gold medalist, in the Gleninger, Democratic People's Republic of Korea, Ri Won-ju. Medalists in total: bronze medalist, India, Ajit Narayana. Silver medalist, People's Republic of China, Chen Jian. Gold medalist, Asian champion and Asian and world record holder, Democratic People's Republic of Korea, Ri Won-ju. अब से कुछ ही देर में 63 किलोग्राम के मुकाबले होंगे, महिलाओं के स्नैच स्पर्धा के मुकाबले होंगे। और ये है लिस्ट आप देख सकते हैं, जहां निरुपमा देवी सेरेम भारत की, और उसके अलावा यहां उत्तर कोरिया जो एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है, और चीन का भी प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। और अगर महिलाओं की बात करें तो उत्तर कोरिया को एक गोल्ड मेडल मिला है, चीन को एक गोल्ड मेडल मिला है, ताइपाई को एक गोल्ड मेडल मिला है, और यहां पर इनमें से चीन और उत्तर कोरिया के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। और बाकी रही बात, ताइपाई भी है यहां पर मौजूद, क्योंकि महिलाओं में वो भी एक अच्छी खासी शक्ति है। और हांगकांग चाइना और चाइना की टीम, चाइना के फांग लिन रखेंगे चुनौती। तो इस तरह से मुख्य प्रतियोगिता यहां पर जो है वो उत्तर कोरिया और चीन के खिलाड़ियों के बीच, लेकिन भारत की निरुपमा देवी भी यहां कम से कम कांस्य पदक के लिए जद्दोजहद जरूर करेंगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है हालिया। खासकर अगर आप देखें कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में उन्होंने 217 किलोग्राम वजन उठाया, और आज के उद्घाटक यानी सलामी यानी पहले प्रदर्शन के साथ चेंग चिंग तो, जो कि हांगकांग से ताल्लुक रखती हैं, 66 किलोग्राम का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है अपने लिए।
बहुत ही सहजता के साथ 66 किलोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही चेंग चिंग तो। It was absolutely an effortless, a classic and an artistic lift. और अब चेंग चिंग तो हांगकांग के, जिन्होंने पहले प्रयास में 66 किलोग्राम वजन उठाया था स्नैच में, और अपने दूसरे प्रयास के लिए वो तैयार। अभी आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें देखा, जिससे ग्रिप या पकड़ बनाने में मदद मिलती है और हाथ भी नहीं फिसलता। 68 किलोग्राम के लक्ष्य के लिए तैयार। हल्का कंपन जरूर था, लेकिन एन वक्त पर उस कठिनाई से दूर हुई, कठिनाई को दूर किया उन्होंने और 68 किलोग्राम वजन उठाने में कामयाब रही चेंग चिंग तो। मलेशियाई खिलाड़ी नूर शेजवानी बिनती राजदी, जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में इन्होंने 91 किलोग्राम वजन उठाया था स्नैच स्पर्धा में, यहां 90 किलो तक तो इन्होंने पहुंचा दिया अपने प्रयास को, और वो भी दूसरे ही प्रयास में। अच्छा स्क्वाड शुरू में लड़खड़ाहट के बाद उभरी उस लड़खड़ाहट से, और इसके साथ ही तीनों रेफरियों ने गुड लिफ्ट करार दिया इस प्रयास को। It was indeed a low squat. और अब निरुपमा देवी सेरम, जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, भारत की ये खिलाड़ी क्या यहां पर पदक जीतेंगी, उस पर सबकी नजरें हैं। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड से ताल्लुक रखती हैं, सीनियर नेशनल में बहुत उम्मीदें जगाई इन्होंने। मोदी नगर में इस साल स्वर्ण पदक जीता, 2 राष्ट्रीय कीर्तिमान इन्होंने बनाए थे क्लीन एंड जर्क में और टोटल में, और 94 किलोग्राम वजन इन्होंने वहां उठाया था, और पहले ही प्रयास में 92 किलोग्राम का उनके सामने लक्ष्य, और उसको बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही भारत की उदीयमान उभरती हुई निरुपमा देवी सेरम, जिनका सर्वश्रेष्ठ 94 था नेशनल्स में। यहां 92 किलोग्राम इन्होंने पहले ही प्रयास में उठा लिया, तो सुधीर हम ये मानकर चलें कि ये 94 को तो बहुत सहजता के साथ पार करेंगी। कोरियाई खिलाड़ी अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए तैयार एन से सुंग, जो गलती दूसरे अटेम्प्ट में हुई थी, अब तीसरे अटेम्प्ट में उस गलती को सुधारने के लिए प्रयासरत। और ये शानदार प्रदर्शन रहा और गुड लिफ्ट करार दिया गया। जो पिछला प्रयास इनका असफल रहा था, उसको सफलता में उन्होंने तब्दील कर दिया। ना सिर्फ सफलता में तब्दील किया, बल्कि 6 प्रतियोगियों में अब तक वो सबसे आगे पहुंच गई हैं। स्नैच स्पर्धा का सवाल है, जहां तक 63 किलोग्राम के महिलाओं के वर्ग में वो सबसे आगे फांग लिन चीन की, जो 105 किलोग्राम वजन पहले प्रयास में नहीं उठा पाई थी, और अब दूसरे प्रयास में अपनी पहली गलती को सुधारने का प्रयास करती हुई। बहुत लंबा तजुर्बा है, लेकिन उतने ज्यादा पदक नहीं है जो चीन की खिलाड़ियों को अक्सर देखने को मिलते हैं वेटलिफ्टर्स को। और इस बार ज्यादा सहज दिखाई दी और कोई कंपन नहीं, और इस तरह से 105 किलोग्राम वजन को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। तो इस तरह से उन्होंने उत्तर कोरिया की री सुक की कर ली है बराबरी। Once it looked that she is struggling during the squat, and while getting up, she took a little more time, but didn't lose the balance, and that was the bright part of her lift. री सुक आई हैं एक बार फिर से तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए। लक्ष्य है 111 किलोग्राम। यदि वो ये लक्ष्य को साधने में कामयाब हो गई तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी होगी। जी हां, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी होगी, जो उन्होंने ही बनाया था, री सुक ने ही बनाया था। लेकिन ये 2003 का रिकॉर्ड है, ये उनका नहीं बल्कि 111। और यहां पर क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाएगा? ग्रीन सिग्नल का इंतजार।
ये देखिए आप, कितना अच्छा बैलेंसिंग अप्रोच उन्होंने दिखाई और यहां सबका दिल जीत लिया इस खिलाड़ी ने। री सुक का आज नाम रहेगा जब भी चर्चा होगी। विश्व कीर्तिमान, जो कि बहुत पुराना विश्व कीर्तिमान है 2003 का, उसकी वो बराबरी करने में कामयाब। 23 वर्षों के बाद ये लम्हा आया है जब उस रिकॉर्ड की बराबरी हुई है। और अब आई है यांग ल्यू युई। इन्होंने 112 किलोग्राम का लक्ष्य रखा है। यदि वो ये कारगर हो गई इस वजन को उठाने में, तो उन्होंने तो, मोहतरमा ने तो बराबरी की थी, ये तो विश्व कीर्तिमान को ही ध्वस्त कर डालेंगी। अगले 22 सेकंड के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद जो है पता चलेगा। जी हां, वो लम्हा आ गया। विश्व कीर्तिमान 112 किलोग्राम वजन उठाने में कामयाब। बेहतरीन प्रदर्शन। 111 किलोग्राम जो 2003 का रिकॉर्ड था, कीर्तिमान था, पहले उसकी बराबरी हुई थी उत्तर कोरियाई खिलाड़ी द्वारा, लेकिन अब यांग उनसे भी ऊपर निकल गई। उन्होंने यहां वो लम्हा जुटाया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्नैच स्पर्धा में बन गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। 23 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है आज। यादगार लम्हा, गांधीनगर के लिए यादगार लम्हा कि गांधीनगर की, हिंदुस्तान की इस पर्व, इस नगरी में ये आप देख सकते हैं स्थिति यांग ल्यू यू चीन की, जिन्होंने 112 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर री सुक उत्तर कोरिया की, जो एक समय वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबरी करने में कामयाब रही थी, वो दूसरे स्थान पर 111 किलोग्राम। नेक टू नेक फाइटिंग चल रही है दोनों के बीच। 105 किलोग्राम फांग लिन ने उठाया, ये भी चीन से ताल्लुक रखती हैं। फिर कोरिया का नंबर, और फिर भारतीय खिलाड़ी निरुपमा देवी सैरम, जिन्होंने 92 किलोग्राम वजन उठाया पहले प्रयास में, लेकिन अगले दोनों प्रयास उनके असफल रहे और उन्हें 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। और अब पहले प्रतियोगी क्लीन एंड जर्क की प्रतिस्पर्धा यहां पर चलती हुई, और क्लीन एंड जर्क हांगकांग की ओर से चेंग टो चैंग। 83 किलो भार उठाने का लक्ष्य इनके सामने। बड़ी ही सहजता से अपना पहला चरण पूरा किया 83 किलो भार उठाने का, और ये दूसरा चरण जर्क का पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करते हुए 83 किलो इनका पहला प्रयास। हांगकांग की ये लिफ्टर चेंग टो चैंग, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में 83 किलो की लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर गई हैं। ये ताइपाइन की लिफ्टर अब अपने पहले प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर। पहला प्रयास स्नैच में उन्होंने अपना बेस्ट दिखाया था 89, और देखना होगा क्लीन एंड जर्क का उनका जो पहला प्रयास है, पहले प्रयास के लिए वो आ रही है 112 किलो की लिफ्ट किस तरीके से अंजाम तक लेकर जाएंगी 112 किलो की लिफ्ट को, यह देखना भी बाकी। One, 1, 2. That's the first lift that Yu Ling has decided to take upon herself. So comfortable, so smooth in that first segment on the clean. On the jerk as well, the arms are extended, the body is poised. A good clean lift. Yu Ling in total control. We saw that in the first segment itself. She picked up the weight. Watch this here. So calm and composed, and the control with her legs to bring up that weight calmly, slowly, and then comes the extension. A beautiful lift at 112, and the fist bump says it all. That's a good beginning. और दक्षिण कोरिया की ये लिफ्टर ह्यूजुंग उन अपने दूसरे प्रयास को यहां पर पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करने के लिए आई हैं। 115 किलो भार उठाया था उन्होंने, पर वह नो लिफ्ट करार दिया गया। अब 118 किलो का प्रयास उनके सामने। देखना होगा इस चुनौती को वह किस तरीके से सफलताओं में परिवर्तित कर पाती हैं। उनके प्रशिक्षक बहुत गहन चिंतन में, और स्वाभाविक है ऐसे समय में मनन चिंतन करना बहुत जरूरी। अभी रुक नहीं पाई हैं, मगर फिलहाल रुकने में संभव हुई, और फिलहाल ये गुड लिफ्ट करार दिया गया है। बहुत ही बढ़िया।
18 किलो भार उठा पाने में अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत कर दी उन्होंने। अब इंडियन लिफ्टर अपने पहले प्रयास के लिए अग्रसर। निरुपमा देवी अपना पहला प्रयास। काफी अच्छा अनुभव है निरुपमा देवी के पास। वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतिनिधित्व कर चुकी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक इनके नाम हैं। बिल्कुल सही, 123 किलो भार उठा पाने में अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत करी हैं और विजय ताली बजाते हुए इनका स्वागत कर रहे हैं इनके प्रशिक्षक। बहुत ही बढ़िया तरीके से 123 किलो अपना पहले ही प्रयास में 123 किलो की लिफ्ट पूर्ण अंजाम तक लेकर गई हैं। और अब देखना होगा इनके अन्य प्रतियोगी जिनके आगे इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक दबाव सा बनाने की कोशिश की है, उस कोशिश में कितनी सार्थकता बरत पाती हैं। Lin Fang of China, 130 kgs. That's what's on the bar. The intensity in Lin's eyes. She's so focused, so determined. Gets it up. 130 kgs, remember. A whole 7 kgs ahead of everyone else right now with that first lift. 130 kgs to the Chinese. Lin Fang sets the ball rolling. This is the real competition in clean and jerk between these three girls. Lin Fang of China. The other one who's going to compete is Yang of China. And then there is Sukri of North Korea. Between these three girls, who is it who's going to be taking that gold medal home? अब चाइना की दूसरी लिफ्टर जो कि अपने प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर अग्रसर हैं। हालांकि इन्होंने 112 किलो की लिफ्ट स्नैच में उठाकर एक एशियन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एशियन रिकॉर्ड जो कि इनके नाम हुआ है 111 किलो का था स्नैच का, वो स्नैच का 112 किलो उठाकर इन्होंने अपने नाम किया है एशियन रिकॉर्ड। फिलहाल 135 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य उनके सामने। 135 किलो पहला प्रयास। स्नैच में तो अपना बेस्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं वो एशियन रिकॉर्ड बनाकर। और ये देखिएगा क्लीन एंड जर्क का 135 किलो का भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। बेहतरीन प्रदर्शन, काबिले तारीफ, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया। ल्यू यांग चीन की ये लिफ्टर, ये देखिएगा किस तरीके से इन्होंने अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत करी। यहाँ पर 135 किलो भार उठाकर 112 किलो उठाकर इन्होंने स्नैच में अपना नया कीर्तिमान भी बनाया है। 111 का इससे पहले कीर्तिमान था, उसको ध्वस्त करते हुए अपने नाम किया 112 किलो का उठाकर। और फिलहाल क्लीन एंड जर्क में भी आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि क्या ये क्लीन एंड जर्क का भी नया कीर्तिमान बनाएंगी। और यहां पर अगली डीपीआर कोरिया, पहला प्रयास। अब देखना होगा, इनका पहला प्रयास ही 138 किलो के लिए है विपिन, यानी कि अगर इस प्रयास को ये सफलताओं में परिवर्तित करती हैं तो पहली पायदान पर रहेंगी, पहले स्वर्णिम सफलताएं दिला देंगी। बिल्कुल, और वही हुआ। स्वर्ण पदक पर पूरी तरह से कब्जा कर पाने में कामयाब हो गई है। अब चाइना और कोरिया, इन दोनों के मध्य ये मुकाबला चलेगा। अब देखना ये होगा कि स्वर्ण पदक की दौड़ में कौन आगे रहता है। हालांकि चाइना की जो प्रतियोगी हैं ल्यू यिंग यांग, वह 135 किलो की लिफ्ट कर चुकी हैं और इन्होंने 138 किलो की पहला प्रयास सफलताओं में परिवर्तित किया है। अब ये देखिएगा, कोरिया के 138 किलो भार उठाकर 249 उनका कुल योग रहा है। उसके बाद चाइना जो कि 135 किलो भार उठाकर 247 रहा है, दूसरे स्थान पर है। और चाइना की ही दूसरी लिफ्टर 130 किलो भार उठाकर कुल योग उनका 235 रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि डीपीआर कोरिया और सेकंड पे
चाइना, फिर चाइना, तो चौथे स्थान पर खिसक कर पहुंच गई हैं भारतीय लिफ्टर। यानी कि अब मेडल टैली से तो पूर्णतः बाहर हो गई हैं, मगर हाँ अपना बेस्ट उन्होंने ज़रूर दिखाया है यहाँ पर। अगर उनकी दो लिफ्ट, अंतिम लिफ्टें 126 और 128 की पूर्ण अंजाम तक जाती तो शायद यहाँ पर एक और परिवर्तन देखने को मिलता। Now, the medalists in this match. Bronze medalist, People's Republic of China, Fang Lin. Silver medalist, Democratic People's Republic of Korea, Ri Suk. Gold medalist in this match, People's Republic of China, Yang Liuyue. Congratulations to the medalists in this match. Thank you. Now, clean and jerk. Bronze medalist, People's Republic of China, Fang Lin. Silver medalist, People's Republic of China, Yang Liuyue. Gold medalist in the clean and jerk, Democratic People's Republic of Korea, Ri Suk. Congratulations to the medalists in the clean and jerk. Now, in total, bronze medalist, People's Republic of China, Fang Lin. Silver medalist, People's Republic of China, Yang Liuyue. Asian and world record holder as well, gold medalist, Asian champion, Asian and world record holder, Democratic People's Republic of Korea, Ri Suk. और अभी 69 किलोग्राम के पुरुषों के मुकाबले ग्रुप ए के अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं, जिसमें स्नैच की स्पर्धाएं होंगी और उसके बाद क्लीन एंड जर्क की स्पर्धाएं। और ये आप स्टार्ट लिस्ट देख सकते हैं, जहां पर उत्तर कोरिया, जो हमेशा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है अन्य प्रतियोगियों के लिए, ताइपाई है, तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, उत्तर कोरिया के 2 खिलाड़ी हैं यहां पर, और एक गेस्ट खिलाड़ी के तौर पर वालेरी अजय बाबू, और फिर कोरिया और श्रीलंका के खिलाड़ी। और ये 14 प्रतियोगी हैं कुल मिलाकर। भारत के एक और प्रतियोगी जो कि विधिवत तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वेदव्रत भराली, और उसके अलावा चीन, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, यहाँ पर 14 कुल मिलाकर प्रतियोगी हैं। अच्छी खासी संख्या है, कंपटीशन भी अच्छा रहने वाला है, और कंपटीशन जब सुधीर अच्छा होता है तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार की आप उम्मीद कर सकते हैं। मंगोलियाई खिलाड़ी अमरसाना अब 118 किलोग्राम वजन उठाएंगे। पहले 108, फिर 113, फिर अब 118। हुक ग्रिप शानदार, स्क्वैट, और स्क्वैट के साथ ही उन्होंने थोड़ी सी स्विंगिंग मूवमेंट जरूर है, लेकिन आखिरी क्षणों में स्थिति को उन्होंने संभाल लिया और 118 किलोग्राम उठाने में कामयाब रहे। तो इस वक्त 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 148 किलोग्राम वजन उठाया है, जुन हेई जुन कोरिया के, और दूसरे खिलाड़ी पीटर खेरेवेतोव, उन्होंने भी 148 किलोग्राम वजन उठाया है। और इन्हीं का हमने नाम लिया अभी, खेरेवेतोव का, जो अब तीसरे प्रयास में 150 किलोग्राम के लिए ट्राई करेंगे। कजाकिस्तान से आते हैं। कजाकिस्तान में नूर सुल्तान हो चाहे अलमाटी हो, वहां पर अच्छी खासी वेट लिफ्टिंग की परंपरा है।
बिल्कुल वही पूर्व सोवियत देशों वाला अंदाज, ग्रिप को लेकर जहां समय लेते हैं। और बेहतरीन स्क्वाट और 150 किलोग्राम वजन उठाने के साथ ही सभी प्रतियोगियों में सबसे आगे निकले। और अब ताइपाई के खिलाड़ी की बारी, चांग सुंग हान। दूसरा प्रयास, 151 किलो का लक्ष्य। और अच्छी स्क्वाट और सभी प्रतियोगियों में सबसे आगे। ग्रीन सिग्नल का इंतजार, पोजीशन जरूर थोड़ी सी बदली थी लेकिन पूरी तरह से सार्थक रही। और मेरे साथ जुड़ गए हैं श्याम वासुदेव। ये तारीफ करनी होगी स्नैच में जिस तरह से सिंगल मूवमेंट से बिना किसी हिचक के वो वजन को सिर के ऊपर लेकर गए, वो काबिले तारीफ। Absolutely, Manoj there. Absolutely. Chang Sun Han gets a clean one there. Needed that big lift to stay in contention here in the snatch, and he gets the job done convincingly. And here is Bedabrat Bharali, who hails from Assam. Comes in for his final attempt in the snatch here in the men's 79 kg category. 145, 148 posed no trouble, and now he's at 151 in his third attempt. ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ होगा अगर ये इस वजन को उठा लेते हैं, क्योंकि सीनियर नेशनल में उन्होंने 148 किलोग्राम वजन उठाया था स्नैच में। और यहां पर सांसों की गति पर नियंत्रण करने के साथ ही 151 किलोग्राम वजन उठाया उन्होंने। उनका हालिया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आप कह सकते हैं, पर्सनल बेस्ट। 145, फिर 148 और फिर 151। हालांकि कोहनी थोड़ी सी पीछे थी लेकिन पैरों के बीच में बहुत अच्छा संतुलन, बहुत अच्छा सामंजस्य से खतरे की घंटी बजा दी इन्होंने कई प्रतियोगियों के लिए और बराबरी करने में कामयाब हो गए हैं ताइपाई के सुंग हान चियांग की। And here comes the man from China. Liu Naigang is back. Cleared 153 in the second time of asking, and now he's attempting 157. "22-year-old silver medalist at the 2025 National Games of China. The student at the Chengdu Sports University attempting 157 in his third snatch attempt." That is an incredible display of strength there from the Chinese lifter Liu Naigang. He was stuck in a deep squat for a couple of microseconds there. It looked like he was at a spot of bother, but he summoned every little ounce of energy there in his body to drive past. क्या उन्हें री रियोंग ह्योन चुनौती दे पाएंगे जिन्होंने पिछले प्रयास में 156 किलोग्राम वजन उठाया था? लीजिए जनाब, 158 किलोग्राम वजन। कौन कहता है कि वेट लिफ्टिंग में रोमांच नहीं होता? एक एक किलो का वजन जो है बहुत मायने रखता है। अभी 157 किलोग्राम वजन उठाकर सबसे आगे रहे थे लू नेंगगैंग और यहां पर अब 158 का लक्ष्य स्नैच स्पर्धा में री रियोंग ह्योन के सामने। लीजिए जनाब, सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ा। तीसरे और अंतिम प्रयास में 158 किलोग्राम वजन के साथ सबसे आगे ह्योन री रियोंग। नाम याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। आगे ओलंपिक भी होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो खैर नहीं होंगे ये, लेकिन बाकी प्रतियोगियों में निश्चित तौर पर ये सब पर हावी साबित हो सकते हैं। धरती हिंदुस्तान की है लेकिन उत्तर कोरियाई खिलाड़ियों के बीच में जो जंग चल रही है वो अपने आप में काबिले तारीफ। री चोंग सुंग 155 किलो पहले प्रयास में, लेकिन दूसरा प्रयास 161 का असफल रहा और अब तीसरे प्रयास में दूसरे प्रयास की गलती को सुधारने के लिए लालायित। यदि कामयाब हुए तो सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ देंगे स्नैच स्पर्धा में।
अच्छा स्क्वैट और उसके बाद जिस तरह से सिर के ऊपर बिना किसी सिंगल मूवमेंट से ये लेकर गए हैं, काबिले तारीफ। और तीनों रेफरियों ने अभिवादन किया ग्रीन सिग्नल दिखाकर। 161 there. He made it look easy in the second attempt. I think the third one though, he made sure made it look easier with absolutely no wobbles, no changes there. Just a majestic posture. And he gets 161. There we have the scorecard. At 161 with the best of 161 is the man from North Korea. Trailing him is his compatriot Ri Rong-hyun with 158, and third is Lu Naigang of China at 157. Shang Sun-han of Taipei is at 151. Barali Bedabrat from India is at 151 as well. And then there's Krevitov Peter from Kazakhstan at 150. Jun Hejun from South Korea at 148. And Ali Majnav Abdul Aziz from Uzbekistan at 148 in the 8th position. देखना होगा यहाँ पर उनकी क्षमताएं, दक्षताएं किस तरीके से अपनी तकनीकी योग्यताओं का प्रदर्शन करते हुए, प्रयोग करते हुए 128 किलो की लिफ्ट को अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें विपिन, पहले प्रयास में कोशिश करी, असफल रहे, मगर दूसरे प्रयास में उसको पूर्ण कर पाए। मगर फिर भी वो जो चीज़ दिखनी चाहिए थी, कमबैक दिखना चाहिए था खिलाड़ी के अंदर, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि लॉन्ग रीच है, लंबी कदकाठी को एडवांटेज होता है। और यहाँ पर ये देखिएगा, अब भी थोड़ा सा बबलिंग था, मगर फिर भी गुड लिफ्ट करार दिया गया है। 128 किलो की ये लिफ्ट इन्होंने पूर्ण अंजाम तक लेकर गए हैं। 68. A bridge too far for him to cross on the last occasion. बिल्कुल अंतिम प्रयास है, करो या मरो वाली परिस्थिति है भारतीय लिफ्टर के लिए या अजय बाबू विलोरी के लिए। और देखना होगा यहाँ पर 168 दोनों ही बार पहले और दूसरे प्रयास में ये असफल रहे हैं। तीसरे प्रयास में ये दिल मांगे मोर, ये लिफ्ट तो होनी चाहिए वैलिड, ताकि प्रतियोगिता में बने रहें। बिल्कुल सही, और ये लिफ्ट गुड लिफ्ट करार दी जाएगी। इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब हुए हैं और अपना तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने इस लिफ्ट को अपनी सफलताओं में परिवर्तित किया। काबिले तारीफ। थोड़ा सा इनके मांसपेशियों में खिंचाव जरूर आया है। ये देखिएगा किस तरीके से पहला चरण पूरा किया, बार को अपने शोल्डर्स पर लिया और उसके बाद जर्क का जब इन्होंने लिया, इस बार पीछे की ओर वेट नहीं किया, बिल्कुल संभल गए। जो गलती 2 बार इन्होंने करी थी उस गलती को नहीं दोहराया और ये लिफ्ट इनकी मान्य हुई। और We have Petra coming up for this lift at 185 kgs. अब जरा रोचकता ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब लिफ्टर अपने दमखम का बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। 185 किलो डाल में पात 185 किलो उज्बेकिस्तान के लिफ्टर करके गए और अब 185 किलो की लिफ्ट पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में कामयाब हुए हैं पीटर, जो कि कजाकिस्तान के थे। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन प्रदर्शन, उत्कृष्ट, अतुल्य। 150 किलो इन्होंने, कजाकिस्तान के लिफ्टर ने 150 किलो स्नैच में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। और वहीं अगर उज्बेकिस्तान के लिफ्टर की बात करें तो उन्होंने 148 किलो भार उठाकर स्नैच में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। और अब 185 पर दोनों पहुंच गए हैं। 183 वैलिड लिफ्ट रही है इनकी पहले प्रयास में क्लीन एंड जर्क की। 157 स्नैच में निकाल चुके हैं, गुड लिफ्ट कर चुके हैं। अब देखना होगा अपना दूसरा प्रयास। 188 188 किलो का लक्ष्य निर्धारित किया है विपिन। ये है पावर गेम। जैसे जैसे वजन में वृद्धि होती है, रोचकता भी बढ़ती है, उत्सुकता भी बढ़ती है और सांसें रुकती हैं कि क्या ऐसा संभव है। बिल्कुल ये दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी कि संभव है। उनकी तकनीकी योग्यताएं इतनी अच्छी हैं, क्षमताएं, दक्षताएं इतनी अच्छी हैं।
इतना कड़ा परिश्रम और अभ्यास के बाद यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचते हैं कि आप 188 किलो की लिफ्ट को गुड लिफ्ट करार करवाते हैं। सभी को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया और हमारे साथी कमेंटेटर भी इनके इस कौशल को देखकर ताली बजा रहे हैं। विपिन, वाकई काबिले तारीफ है, बनती है भाई ताली तो। Absolutely, I couldn't help myself. 188, and that so with so much ease, so comfortable. 183 on that first lift, gets some 188 on the second. बिल्कुल, उज्बेकिस्तान के लिफ्टर इससे पहले प्रयास में 185 किलो की लिफ्ट को सफलताओं में परिवर्तित कर चुके हैं। अब देखना हो ये होगा कि अब 191 किलो यानी कि अपने अन्य प्रतियोगियों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहे हैं। यदि इस लिफ्ट को पूर्ण कर लिया तो सभी की सांसें रुकेंगी, क्योंकि स्नैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, मगर क्लीन एंड जर्क में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका स्नैच में प्रदर्शन अच्छा है तो आप क्लीन एंड जर्क में नहीं कर सकते, और क्लीन एंड जर्क में आपका प्रदर्शन अच्छा है तो स्नैच में भी अच्छा होना चाहिए। मगर यहाँ पर ये दिखाता है खिलाड़ी कि उसमें दम कितना है। इनका अपना बेस्ट दिखाया है 191। उज्बेकिस्तान के ये लिफ्टर जिन्होंने अब अन्य प्रतियोगियों के लिए तो चुनौती बहुत बड़ी खड़ी कर दी है। उत्तर कोरिया के लिफ्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं वर्ष 2024 में। अब देखना यह है कि इस एशियन चैंपियनशिप में अपनी स्वर्णिम सफलताएं दिखा देंगे, क्योंकि 158 किलो इन्होंने स्नैच में निकाला है और 196 किलो अपने पहले प्रयास में निकाल दिया। 197 किलो के लिए लिफ्ट इनके सामने। बिल्कुल गुड लिफ्ट करार दिया गया है। 197 इन्होंने उठा लिया और इसी के साथ अब इनका 355 कुल योग हो गया है। 355 टोटल के वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 365 है। अगर ये उस रिकॉर्ड तक पहुंचते हैं, शायद तीसरे अटेम्प्ट में ज़रूर उसको छूने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करना ज़रूर चाहेंगे। अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए यहाँ पर अग्रसर। देखना होगा क्या इस प्रयास को पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करते हैं। अगर इसको पूर्ण करते हैं तो 364 इनका कुल योग हो जाएगा। हालांकि 365 जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही गुड लिफ्ट करार दिया गया। 364 इनका कुल योग हो गया है। अभी फिलहाल वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो ध्वस्त नहीं कर पाए हैं, मगर हाँ ये लिफ्ट जरूर कर दी है। 365 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एशियन रिकॉर्ड है 365, मगर इन्होंने अपनी क्षमताएं दक्षताएं अब पहली पायदान पर तो पहुंच गए हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। प्रसन्न चित्त हैं और देखिए सभी का शुक्रिया अदा किया सम्मान सहित। Confirmations of what I just said. The top position going to North Korea. People's Republic of Korea's Hyungyong got the gold. The silver went to his countrymen, and that was Chongsong. And the bronze went to Liu of China in the overall. Now, the medalists. In the snatch, bronze medalist, People's Republic of China, Lu Naigang. Silver medalist, Democratic People's Republic of Korea, Ri Ryong-hyun. Gold medalist in the snatch, Democratic People's Republic of Korea, Ri Chong-song.
the clean and jerk. Bronze medalist, Uzbekistan, Abdulaziz Alimjanov. Silver medalist, Democratic People's Republic of Korea, Ri Chung-song. Gold medalist in the clean and jerk, Democratic People's Republic of Korea, Ri Ryong-hyun. Now, in total, bronze medalist, People's Republic of China, Liu Naigang. Silver medalist, Democratic People's Republic of Korea, Ri Chung-song. Gold medalist, Asian champion, and Asian and world record holder, Democratic People's Republic of Korea, Ri Ryong-hyun.